ओके गाइस, ओके। सो जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने देखा कि भाई व्हाट इज डेटा साइंस ऑल अबाउट, एंड यू नो हाउ इज इट एप्लीकेबल टू द डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री। हमने एग्जांपल्स भी देखे कि भाई कितने कितने इंडस्ट्रीज में व्हाट ऑल इम्पैक्ट इज इट मेकिंग, एंड हाउ वी इन अ डे टू डे लाइफ, you know, in our day to day life are a product of data science, although we are not the, I would say, the customers, but we are the product. जैसे जियो, we are using जियो का data, so we are contributing to that data, to that 40 zettabytes, right? At the same time we are using YouTube, Netflix, जहाँ पे हम लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे हम लोग को मार्केटिंग के एड्स आ रहे हैं, राइट? इतना हमने पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में, now let's break it up. The first level is SQL. Before showing you the actual slides, just a one pointer about SQL is it's all about the language for accessing the data, manipulating the data and storing the data. इन तीनों चीज में उसका पूरा SQL का एक रहस्य आ गया. Although there are different parts to it, but ये हो गया कि how do you store the data, how do you manage the data, and at the end how do you access the data. As a data scientist we will be more interested about how do we access the data, because there are specialized skill set for storing and managing the data. We are more towards the using or the usage of data. Okay, but still we'll have a good understanding of what each section is all about. I have a hand raised from Sahil. Hi Sahil. Actually, I was just wanted to ask कि आपने slide on किया है कि it's just the नहीं अभी तक नहीं किया है. I was just on the okay verge of doing that. that's it that's All right, all right. हाँ, ऐसा कभी कभी होता है हाँ, कि मतलब मैं म्यूट पे रह जाता हूँ बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग वाटर और यू नो डूइंग सम अदर स्टफ, सो दैट यू डोंट गेट डिस्टर्ब, और मैं स्लाइड्स चेंज करता रहता हूँ. उससे बाद में पता चलता है कि सर आप तो म्यूट पे थे. तो कभी ऐसा हो तो फील फ्री टू पिंग मी अप. okay अभी मैंने ऑन किया है. yeah All right, so SQL stands for Structured Query Language. ये सिर्फ ओवरव्यू है. द फर्स्ट डेक इज ऑल अबाउट ओवरव्यू कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So these are the objectives from this particular course, to understand the relational database management system. So इसके अंदर बहुत सारे keywords हैं. एक तो है database, उसके बाद है database management systems, और उसके बाद है relational database management systems. So we'll come to it in the slides to come. Like I said, SQL is the language. Database management system is a tool. And again, MySQL is a tool, one of the tool for that RDBMS system. Okay, so there are various tools that are available in the market. I'll just come to it. But for this sessions, we'll be using MySQL as a tool of choice. Again, learn to install MySQL and leverage tools to import and export database and tabular data. Of course, we'll be learning how to install MySQL and how do we import and export the data. Third point, be able to perform, create, which means how do you create a new table? How do you read from it? How do you update it? Update basically means how do you change the existing values and how do you delete it? Okay? Learn to combine multiple tables and perform data analytics. Again, there are multiple tables, right? अगर एक कंपनी है तो उसके पास बैंकिंग के एम्प्लॉयज का एक टेबल है जहाँ पे उनका पूरा डेमोग्राफिक है, उनका नेम, उनका जेंडर, उनका एज, नंबर ऑफ पीपल इन देयर फैमिली, and we have another table about their performance, their yearly performance. We have another table जहाँ पे उनके salary का information है, right? Not everybody is stored in a single table, but under the same roof, under the same database. ठीक है? Develop high level understanding about NoSQL database. Now, because of the changing times, like from the name itself, SQL stands for Structured Query Language, which is used to access structured data. Structured data मतलब rows and columns, जो हम Excel पे देखते हैं, rows and columns जो structured होता है. But in the today's world,
we also need to analyze a lot of unstructured data. Before analyzing, we need to store a lot of unstructured data. जैसे how do you think a Facebook page is stored? आप जिन जिन लोगों को टैग करते हो, किन किन लोगों को टैग करते हो, कमेंट्स करते हो, डू यू थिंक रोज एंड कॉलम्स का डेटा वुड वर्क ऑन दैट? आइडियली नो, बिकॉज द डेटा इटसेल्फ इज वेरी डायनामिक. उसके लिए एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेस मैनेजमेंट आता है, and NoSQL is for that. So basically no structured query is unstructured query language, right? So that would be the end part, not the first part. Okay, what are the prerequisites for this cast? Okay, no specific prerequisites. SQL is declarative language and can be learned easily. It is important to develop good understanding of database concepts. Yes, by meaning declarative language, it means that it is as good as आप उसको इंग्लिश में रीड कर रहे हो. सो ऐसा नहीं कि आप टाइप कुछ कर रहे हो, जस्ट लाइक चाइनीज, उसका मतलब कुछ और होता है, आप टाइप कुछ और कर रहे हो. ठीक है, एक बार आप उसका सिंटैक्स देखोगे, उसका कोडिंग देखोगे, आपको पता चलेगा इट्स वेरी इजी. इट्स एज गुड एज वी आर गिविंग अ वर्बल कमांड. ठीक है, आई हैव गॉट अ हैंड रेज्ड फ्रॉम वेबो. वेबो, प्लीज गो ऑन. Yeah, so the question was, why do we, well, like if we know that in today's date, most of the things are going with like NoSQL only. So why do we have it only high level? Why can't we like go deep in it? And this, there is a reason for that. ठीक है, so SQL is in the market from a long time, and it is going to be in the market for a long time to come. But NoSQL is a very niche field of it. okay, It's a very specialized field of it. So कैसा होता है कि जो लोग को NoSQL आता है, वो लोग को SQL तो सीखना ही पड़ता है. right. बट जिन लोगों को SQL आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग NoSQL में जाएंगे. इस वजह से SQL will be the must, but NoSQL will be from a understanding point of view, but not too much in depth. Okay. ठीक है? All right. These are the topics covered. Now I'll take you to एक topic. What does it actually do? A high level point of view. Introduction to database. कि भाई कैसे कैसे प्रकार के database होते हैं और what is the history behind database. Now, one good thing is to break a thing into words. जैसे अगर database आपके लिए एक नया term है, so that consists of two words, data और basis, right? Data हमको पता है, database is nothing but the collection of that data, the base for all those data to be stored. ठीक है? That makes it more intuitive. Introduction to SQL. Of course, अगर database है, I need a language to access it or perform various activities as per my need and requirement. Then we'll move to installation of MySQL server and MySQL workbench. Basics of SQL, DDL, which stands for data definition language, and DML, which stands for data manipulation language statements. Then how do we modify database structures? Structure is nothing but the framework of data. Importing and exporting data, of course, that becomes very important. Data analytics, थोड़ा सा analytics आप SQL पे भी कर सकते हो. Not as good as Python, but yes, थोड़ा सा आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? We'll talk more in detail when it comes. Working with multiple tables, जब हमको पता है बहुत सारे tables होते हैं, तो कैसा? एक hint दे देता हूँ. Multiple tables combined into single database. ठीक है? So data is stored in tables. Tables are stored in databases. ठीक है? Then we have advanced SQL, which stands for, उसके अंदर आता है OLAP, which is online भूल गया मैं क्या था OLAP. अच्छा, online analytical processing, indexing and built-in function. जो specialized जो लोग specialized data engineering field में काम करते हैं. So like I said, data science consists of a lot of field, and there are specialized field that are only towards manipulating the data. वो लोग का काम एनालाइज करना नहीं होता है, just playing around with the data in terms of its storage, manipulating and
accessing. So उस level पे है, it's advanced SQL. And the last thing is SQL versus no SQL. Yes. So this was the overview of this SQL that we'll start. For today's, I'll be just covering the first two part. I'll try to cover the first three part. What is a database? What is SQL? And how do you install the installation of MySQL server and MySQL workbench? Okay, guys, any queries before we move on to the first? Before we move on to introduction to databases, any queries? Any hands up? Not yet. Let me give me 5 more seconds. All right. Allow me to stop the screen sharing and move towards the new deck. So guys, I would like to make this session interesting, and before that, before actually moving on to the installation कैसे करना है का slide, मैंने कुछ दिनों पहले try किया था just to make sure that it is the same flow as I have as I know it. But मैंने देखा कि वो 400 MB का फाइल है for installation. So what we can do is ना, पहले मैं आपको installation बता देता हूँ कि कैसे, बिकॉज तब तक वो डाउनलोड होता जाएगा, और एक बार डाउनलोड हो जाएगा तब तक हम लोग वो जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. सो इन दैट वेज विल नॉट वेस्ट टाइम फॉर वेटिंग कि भाई वो डाउनलोड हो रहा है या किसी और का डाउनलोड हो रहा है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग एंड वी आर अनप्रोडक्टिव. सो व्हाट विल डू, आई विल जस्ट शेयर अ लिंक विथ यू. Give me a moment. I'll just share a link with you. Okay, let me share the whole file, how the installation works. You will see a file soon. ऑल राइट. सो आई जस्ट एक बार आप चैट विंडो खोलो. ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? एरर दे रहा है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट. Okay, I was trying to share a WordPad file, basically Microsoft Word file that has all the steps and the links, but unfortunately it does not allow me. Just 2 KB का फाइल. ठीक है. व्हाट वी कैन डू इज, मैं आपको पहले एक लिंक दे देता हूँ, उस लिंक से अपन डाउनलोड कर लेते हैं पहले. Guys, refer to your chat box. There is a link. All right. ये एक लिंक है, mysql.com/product/workbench. अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ.
Yes sir. Hello. Yeah. Hi, Jay. Actually, the thing is, I already have installed MySQL in my desktop. अच्छा आपने ऑलरेडी कर दिया है. And I use PopSQL for that. All right. Okay. So, do we need some other other editor or something to No, operate in this so data with science? respect to so नहीं फ्यूचर में हम लोग को लग सकता है, बट एट द मोमेंट जो भी हमारा एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन MySQL, we'll just need three things with respect to MySQL. First is the MySQL server. Second Yeah, is that I MySQL have. workbench, which will act as a client, and the third Okay. is ODBC connector. ODBC connector. Yes. So guys, if you have looking at my screen, यहाँ पे जाना है, वो लिंक पे जाएंगे आप, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है आपको. एंड ये जो है यहाँ पे जो लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मोस्ट ऑफ पीपल आई थिंक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है. इफ यू आर ऑन मैक और लाइनक्स, जस्ट चूज मैक ओएस. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे कर डाउनलोड करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा. Vaibhav, were you able to download it? Yeah, I've downloaded. I've also started the installer, but I'm just waiting for instruction now. Okay, एक बार आप screen share कर पाओगे because it's already installed on my machine, so I would, मैंने just try किया, it is not allowing me to reinstall. Okay. You cannot start screen share while other participant is sharing. अच्छा ऐसा है क्या? I did the needful. मैंने अपना बंद कर दिया. Right. Okay. Screen करते हैं. Okay. So you see this screen, yeah. So okay, this is workbench, right? Okay, do not install it. पहले इसको install मत करो. Cancel it. I think before that there is another thing that we need to download. Give me a moment. मैं एक और आपको लिंक देता हूँ, क्योंकि दो चीजें हैं, एक सर्वर भी आपको करना है और क्लाइंट भी करना है. So this is give me a moment guys. सही है, आ गया. चलो एक लिंक दे रहा हूँ, इंस्टॉल दैट फर्स्ट. refer to your chat. Where do I go for chat? नहीं, ऊपर जाओ, एकदम टॉप पे जाओ, आपको ऊपर चैट दिखेगा. टॉप में आपको एक छोटा सा ऐसा वो, हाँ मिल गया. मतलब चैट पे जाइए, वो नया स्क्रीन खोलिए. dev.mysql. करेक्ट, वो डेव वाले लिंक पे जाइए. यस सर बोलिए ना. Hello. Yeah, since I've already installed SQL, so do I need to uninstall and install the server first? And not really. If the version matches ना, we are not going to have any problem. Version आपका यही है कि पुराना वाला है. Let me check. I'm not sure. So version से क्या हो जाएगा कि आपके जो कोड अगर आप में चलेंगे तो हमारे में भी चलेंगे, आप में नहीं चलेंगे तो हमारे में भी नहीं चलेंगे. So that will not be if or. मेरा वर्जन मैं एटलीस्ट 18 होना चाहिए, 8.0.18 होना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज हमारे जो कोड्स है ना उस बेसिस पे बने हुए हैं. मेरा 8.0 है. 8.0 है उसको, तो फिर आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू री डाउनलोड इट. एनीवेज यू आर गोइंग अपग्रेड ही कर रहे हो ना अपने आप को, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू एज वेल. या ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो फॉर अदर पीपल काइंडली व्यू द स्क्रीन व्हिच इज शेयर्ड बाय वैभव. So आपको उस लिंक पे जाना है, जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट पार्ट. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जगह पे आपने अपना ओएस सिलेक्ट कर दिया, अगर मैक ओएस है तो मैक ओएस सिलेक्ट कर दीजिए और जो फर्स्ट डाउनलोड है ना उस पे क्लिक कीजिए. यस वैभव, प्लीज डू द नीडफुल. गाइस एक बार देख लीजिए, नीचे जाना है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड. हमको लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वरना ईमेल्स आएंगे हमको. वी डोंट वांट दैट. सो विल जस्ट सिलेक्ट नो थैंक्स कॉमा जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड. अभी टाइम लगेगा, मैं स्क्रीन से भी कर रहा हूँ और डाउनलोड भी करूंगा, टाइम लगेगा इसको भी.
कितना 32 MB का ही फाइल है राइट? 2-3 मिनट ज़्यादा नहीं। स्टार्ट ही नहीं अब तक। नहीं वो थोड़ा सा लेगा। स्क्रीन शेयर में आपका अपलोडिंग ज़्यादा बढ़ता है डाउनलोडिंग से। अच्छा अच्छा। अगर आप देख रहे हो तो आपका डाउनलोड पे इम्पैक्ट आता है, जैसे अभी हम लोग सब लोग के डाउनलोड पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपके अपलोड पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक बार वो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कीजिए, जो पहला खुला वो, ठीक है। अदर्स आई होप यू आर एबल टू डाउनलोड इट। इफ यस, अगर आपका डाउनलोड हो रहा है जस्ट एक्नॉलेज विथ योर हैंड्स रेज्ड अप। ऑसम, आई कैन सी कृपा's हैंड। ऑसम, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। ओके जिनका जिनका डाउनलोड हो चुका है काइंडली रेज योर हैंड्स। सही है। अरीब, अच्छा अरीब का चल रहा है। कृपा आपका डाउनलोड हो चुका है? कृपा हाँ हो रहा है, चल रहा है डाउनलोड। ओके सही है। So as soon as everybody's hands is up, we'll move towards the step-by-step installation. So I'm just waiting for Arib and Krupa. Arib, you are also downloading it, right? Yes, sir. I'm done actually. ठीक है। जिनका हो चुका है just click on that MySQL installer. ठीक है, अगर वो यूजर एक्सेस कंट्रोल यस कीजिए। थोड़ा सा वो इंस्टॉल होगा और नो कीजिए, नो नो। सो अगर ऐसा सीन आता है कि भाई ऑप्शनल MySQL इंस्टॉलर अपग्रेड अवेलेबल, जस्ट क्लिक ऑन नो। We don't want upgrade, we just want whatever we have chosen for. ठीक है, let's wait till here because यहाँ से actual step start होता है। Okay, I think सबका hands up है। Okay guys, were you able to reach the stage where Webhouse screen is showing? तो अभी हम लोग उल्टा करते हैं। For people who have not reached this till this level, kindly raise your hand. For people who are already with us, you can bring down your hand. So raising hand means wait, कि भाई रुको, मैं अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं हूँ। हेलो।
Hello, guys, can we continue? Arib and Krupa, is it okay if we go ahead? Okay, I've got a go ahead from Arib. All right, guys. यहाँ तक सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली यू नो यू विल रीच दिस स्क्रीन. यस 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 करोगे तो आप ये स्क्रीन पे आ जाओगे. वैभव प्लीज क्लिक ऑन द कस्टम. नेक्स्ट. ऑलराइट, अब हम लोग को 3 चीजें चाहिए इसमें से. सबसे पहले हम लोग को चाहिए MySQL सर्वर. उस पर क्लिक कीजिए, उस पर प्लस कीजिए. सो यू कैन नॉट बेसिकली आप उसको राइट साइड पे नहीं भेज सकते. प्लस कीजिए. नाउ दिस आर ऑल द वर्जन्स. यस MySQL सर्वर 8.0. तो बेसिकली ये सब वर्जन्स है. 8.0 के अंदर भी 8.0.19 इज द लेटेस्ट. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट और राइट साइड में मूव कर दीजिए उसको जो इंस्टॉल करने हैं हमको. ठीक है, वापस से माइनस पे क्लिक कर दीजिए. सो MySQL सर्वर हमने सिलेक्ट कर दिया है विच इज द लेटेस्ट 8.0.19. ये सर्वर का लेटेस्ट है. दैट इज द वन ऐप वी वांट. विद इन नाउ क्लिक ऑन एप्लीकेशंस. अभी सर्वर तो हो गया लेकिन क्लाइंट भी चाहिए, राइट? सो फॉर क्लाइंट वील यूज वर्कबेंच. यस, जस्ट क्लिक ऑन दैट. यस, जो सबसे टॉप वाला है दैट इज द लेटेस्ट वर्जन. सो दैट बिकम्स आवर. यस, सो ये 2 हो गए. वापस एप्लीकेशंस क्लोज कर दिए. MySQL कनेक्टर्स पे जाइए. ODBC कनेक्टर /ODBC. उसमें 8.0 बेसिकली लेटेस्ट ही सिलेक्ट करना है. 8.0 के अंदर 8.0.19. ठीक है गाइज, आई रिपीट, ये 3 हमको चाहिए. सो फर्स्ट आपको मिलेगा MySQL सर्वर में से. सेकंड आपको मिलेगा एप्लीकेशंस के अंदर वर्कबेंच. उसके अंदर जो टॉप पे है बेसिकली आपको वो सिलेक्ट करना है. एंड जो थर्ड है कनेक्टर /ODBC, वो आपको मिलेगा MySQL कनेक्टर से. उसमें भी टॉप पे अपने को मिलेगा कनेक्टर /ODBC. उसके अंदर हम लोग को लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना है. ठीक है, नाउ एवरीबडी विथ मी. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? प्लीज यूज चैट. अगर क्वेश्चन है, कुछ एरर आ रहा है. चाहिए तो एक बार ट्राई कर लो. ओके, yes Krupa, we'll wait for 2 minutes. In the meantime, everybody can try this on their own machine. जिन लोगों का हो रहा है ना, please type yes in the chat box. Okay, Nikhilesh and Umed, I think you guys are done till here. Sarfraz is done. So out of 7 participants, 3 are done. Only 3 to download. Yes, Sahil. We just need 3 for our purpose. I repeat, MySQL server 8.0.19. सबका वर्जन वही है 8.0.19. But there are 3 things that we need: MySQL server, MySQL workbench, and connector /ODBC. I rechecked and I have the same version installed. Perfect, Arif. Done. Okay. So I've got from Sahil, Krupa. All right. So Vaibhav, please click on next. Okay. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नाउ जिन लोग का मशीन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉल्ड है वो लोग को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. दिस रिक्वायरमेंट एरर विल नॉट कम. फॉर एग्जांपल मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, वो नहीं आया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट MySQL सर्वर 8.0. हाँ, यहाँ पे नीचे आता है एग्जीक्यूट करके एक बटन है. व्हाट इट सेज कि अगर आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कर लेगा माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से. जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. ठीक है, अब दोनों के लिए वही रिक्वायरमेंट है. तो एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका MySQL वर्कबेंच के लिए भी वो हो जाएगा. आई थिंक इनका फास्ट है वैभव जी का. तो आई विल वेट फॉर अ मिनट बिकॉज उसके बाद एक और आपको नेक्स्ट करना पड़ता है. कितने लोग को ये पर्टिकुलर एरर नहीं आया? नॉट एरर बट दिस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया. आई थिंक जिन लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर्स हैं उनको आया ही होगा.
ओके वेट फॉर अ मोमेंट वैभव. गॉट दिस रिक्वायरमेंट. सही है. तो जिनको एरर नहीं आया, रिक्वायरमेंट का मैसेज नहीं आया, उनके में ऑलरेडी होगा इंस्टॉल्ड. ठीक है. एक बार आप डाउनलोड कर लोगे. सो गाइज इफ यू आर इंस्टॉलिंग एट योर मशीन काइंडली पे अटेंशन हियर. एक बार आप करोगे उसके बाद से आपको आई एग्री टू द लाइसेंस टर्म करना है. बेसिकली जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे, उसमें हम क्या करते हैं, आई एग्री और इंस्टॉल. वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. समटाइम्स ये पूछता भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है इंस्टॉल. ओके क्लोज. सही है. एक बार ये हो गया. अभी आपको नेक्स्ट करना है बस. ठीक है. रेडी टू डाउनलोड. अब एग्जीक्यूट कर दीजिए. अब दिस इज द कैच व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब ये जो ये MySQL सर्वर है, इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 450 MB, जो आपको नियरली 15-20 मिनट्स या आधा घंटा भी ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड. So this is the time I wanted to utilize for coming back to the theory. Okay, guys, यहाँ तक सब clear है. If anybody has any problem, just let me know. I'll just unmute and we can discuss it. So Vaibhav has a fast internet, so उनका बहुत fast हो रहा है. It took me 25 minutes to download that file. My download is done. सही है निखिलेश. What I'll do is, एक बार आपका ये डाउनलोड हो गया उसके बाद आपको सिर्फ सेटिंग्स ही करनी है. You just have to make a few settings. Yes, Sahil, of course, I'll unmute you. So my problem is इसमें तीनों में showing C++ to the हाँ. Microsoft. वो So तीनों I'll में- click on my server, MySQL server and execute. Correct. Okay, then after that it's showing downloading, and again I have to do it for Workbench and connector. No, you don't have to. See, it is the Yeah. same file that is required for the 3 softwares, right? So you don't need to download it 3 times and install it three times. वो दिखाएगा आपको तीनों के लिए. एक ही बार डाउनलोड करना है, राइट? Okay, I got it. अभी हो रहा है वो डाउनलोड. एक बार होने दो. उसमें सिर्फ एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस जो भी रहेगा उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट करना है. 2 मिनट के अंदर वो डाउनलोड. या गॉट इट. उसके बाद नेक्स्ट जाके कर सकते हो. तो फाइनली जो वैभव जी के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वहाँ पे आपका डाउनलोड होगा फर्स्ट और उसके बाद वो इंस्टॉल्ड होगा. अभी तक सिर्फ डाउनलोड ही हुआ, तो उनका एक डाउनलोड हो चुका है, बाकी के 2 डाउनलोड चल रहे हैं. ठीक है. ओके, सो मेरा हो गया अभी. इट्स शोइंग डाउनलोडिंग. या इट्स गोइंग प्रीटी मच फास्टर. यहाँ पे वी कैन मूव अहेड विद द डेक पार्ट. ओके, सो साहिल से कंफर्मेशन आ गया है, वैभव जी से कंफर्मेशन आ गया है, अरीब का ऑलरेडी डन है. निखिलेश अय्यर इज सेइंग दैट उनका डन है. व्हाट अबाउट सरफराज? उमेद का भी आई एम अज्यूमिंग डन है. लेट मी नो. सो व्हाट अबाउट सरफराज एंड कृपा? सरफराज, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू. अच्छा, उमेद का डन है. सही है. सरफराज हो रहा है डाउनलोड? सही है सब यहाँ तक? think is not able to remember. Yes, Krupa, all good with you? Yeah, it's getting downloaded. So you are The on third the one same connector screen? is done. Yeah. The third part is done. Connector first and second are yet getting done. सही है. So let it happen, let it download, because अपना Zoom session चलेगा. Until then, let's move on to the theoretical part. So this I have proactively, मतलब installation is the second part, but
I didn't wanted to waste our collective time at that point of time, because इसके लिए हमने क्या किया, पैरेलल कर दिया है अभी. तो ये डाउनलोड होता रहेगा at our own speed. जैसे डाउनलोड हो जाता है हर एक का, just let me know on your screen. ठीक है. In the meantime we'll just continue with the theoretical part. Awesome. कोई भी इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा अगर वो डाउनलोडेड हो चुका है तीनों पार्ट. कीप इट दैट वे. जब टाइम आएगा तभी हम सब साथ में करेंगे. All right. Thank you, Vaibhav, for volunteering. It's okay. So I'll stop the sharing. Yes, please. All right. All right. I'll just start with the theoretical part. All right, guys. Are you able to see the screen? Give me a moment. I'm just facing an issue. Give me a moment. All right, guys. Okay. Thank you for confirming. Okay, so let us start with the what is SQL. What is the introduction of SQL? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे. So what introduction के अंदर we'll be covering topics such as what is data, what are databases, what is the need of database, types of database. Of course, that's also important because we'll study about what are the different types of database available in the market, so on and so forth. Then how data. So again, within types of database, one of the type is relational database, which we'll be covering. Then what is SQL? एक बार data आ गया, उसके बाद we'll study what is SQL and why SQL. Then what is the impact or the need of SQL with respect to data science, right? This will be how we'll continue. जब तक हम लोग ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आई एम श्योर कि सबका कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड. सो व्हाट इज डेटा? आई एम श्योर जितने भी लोगों ने अपना डेमो अटेंड किया था, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. व्हाट इज डेटा? Because without understanding what is data, you cannot understand what is data science. So data, अगर history में जाएं तो it has been derived from the Latin word called datum, which means a single fact or entity or point of matter. So basically, in simple terms, any recorded form of truth is a data. So for example, your age, your weight, your bank account number, the amount in your bank account, all this is data that can be used for different purposes, for different objectives. The examples are tweets, the company's financial reports, the newsletter, or the the articles that we see. Again, the sales data, the employee data, everything is data. Cool. Now what is database? Like I said, database consists of two terms. एक तो है data, एक तो है base.
इन सिंपल वर्ड्स, जहाँ पे भी डेटा अपना बेस बनाना है, दैट इज डेटाबेस. मैं तो ऐसे ही समझता हूँ. वेरी सिंपल, वेरी नेटिव, वेरी नाइव, कि wherever the huge collection of data is there, that forms a database. In technical terms, if you want to go by the Wikipedia's definition, a database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. Of course, what you see in the image is we have small data, and the collection of it is called as database. And थोड़ा सा technically है, but the data is always represented in bits, which is zeros and ones. So I also take microprocessor ka classes for some other in university. So वहाँ पे we talk about bits. Everything that is digital can be represented or has to be represented in bits, which is 1010. ठीक है. So that is about database. Nothing but the जहाँ पे भी data store होता है, that is called as database. These are the features of the database. Data are raw facts that constitute building blocks of information. I think हमने बताया कि भाई small data से बनता है. Database is a collection of information and a means to manipulate data. It allows easy, fast access and facilitate the processing of data. Right. So एक बार मेरा data store होता है, database allows me easy and fast access to process the data. Right. What is the need of data? Basically storing, अगर मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर पाऊँ all this ज्ञान को, there are 3 things: storing the data, managing the data and accessing the data. यहाँ पे पूरा हो जाता है कि अगर मेरा डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक डेटा इधर है, एक डेटा उधर है, एक डेटा उधर है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है. दैट बिकम्स लाइक अ SBI का बैंक कि भाई काउंटर नंबर 2 पे जाओ, काउंटर नंबर 4 पे जाओ, मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 6 पे जाओ. ठीक है. बट व्हाट इफ everything is managed centrally, everybody has access to it, and it is managed with security, with high quality, with high integration. मतलब टेलर का डेटा डिपॉजिटर के पास नहीं है, डिपॉजिटर का डेटा वो जो कासा है जहाँ पे आपके लॉकर्स होते हैं उनके पास डेटा नहीं है. सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड दैट यूज्ड टू हैपन जब हम लोग पेपर फाइल्स के जमाने में थे. इट वाज अ सिचुएशन कि आपको फाइल्स घुमानी पड़ती थी. जैसे देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फाइल घुमाना, व्हिच मींस एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक आपका फाइल जाता है. नोबडी हैज अ सेंट्रल एक्सेस टू इट, बट राइट नाउ दैट इज नॉट द केस. ठीक है. सो डेटाबेस enables us to that कि भाई यहाँ से आपका गया फाइल, the same file can be accessed in the same way at the same moment to other entities as well. So again I repeat, 3 important part: storing the data, managing the data, the third is accessing the data. ठीक है. That is the need of database. Now this is the history of database, how database has been evolved. So in 1960s, data is flat files. Flat files are nothing but basically आपकी जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, एक सिंगल जो हम लोग नोटपैड होता है उनको बोलते हैं फ्लैट फाइल्स के उसमें था. बट 1970 में इन्वॉल्व इनटू अ पेरेंट चाइल्ड मैनर, व्हिच मींस क्रिएटिंग अ हायरार्की और क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू मल्टीपल फ्लैट फाइल्स. उसके बाद आया इन अ टैबुलर फॉर्मेट व्हिच वी कॉल एज रोज एंड कॉलम्स. It was the year 1990s, or I would say that decade, जहाँ पे the data was refined. It was used as an object. When I say that it is used as an object, it means it was the time जहाँ पे वो सिर्फ the focus was not only storing the data but also using it. When you make it an object, it means it can be used for multiple purposes. And then there came the decade of information technology, जहाँ पे in 2000s there was something called as data warehouse, distributed data and big data. ठीक है. Although big data was not, the definition was not constituted at that instance in the 2000, but still big data used to exist in a very naive form. Now I get questions like, what is data warehouse? Data warehouse is nothing but a consolidation or a combination of multiple databases at a single place. For example,
अगर मैं Amazon का लूँ, सो Amazon के पास कितने कितने अलग अलग प्रकार का डेटाबेस होता है। कस्टमर का डेटाबेस अलग होता है, जहाँ पे आप जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपका इन्फॉर्मेशन लेता है वो बहुत सारा, तो आपका कस्टमर डेटा बन जाता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका एज, आपका जेंडर, आपका पिन कोड, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, वो सब आपका कस्टमर इन्फॉर्मेशन बन जाता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन, कि भाई क्या क्या आप खरीदते हो, क्या क्या आपने कार्ट तक लाया, मतलब बेसिकली आपने कितना कितना खरीदा है ओवर द इयर्स। एक होता है आपका विजिटिंग इन्फॉर्मेशन, कि भाई आपने कौन से पेज पे क्लिक किया, कितने सेकंड्स के लिए किया, उस पेज से आपने चेकआउट किया या कार्ट पे गए या कोई और प्रोडक्ट पे गए। सो ऑल दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सो देयर आर फॉर द सेम कंपनी Amazon देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये हो गई एट अ कस्टमर लेवल बात, बट सिर्फ अपन तो Amazon के कस्टमर है नहीं, बराबर। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज वेंडर ऑल्सो, राइट, जहाँ पे लोग अपना प्रोडक्ट डालते हैं और हम उसको खरीदते हैं। Amazon इज अ प्लेटफॉर्म आफ्टर ऑल। सो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है फिलिप्स, बराबर, वो अपने LEDs डालती है, वो अपने हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस डालती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज के डिवाइसेस डालती है, तो उनका भी डेटा होता है। वेंडर का डेटा होता है, कि वेंडर का जो डेमोग्राफिक डेटा होता है, कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, GSTIN नंबर क्या है, कब से मैन्युफैक्चरिंग में है, तो वो जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें हर एक बंदे का एक एक रिकॉर्ड एंट्री होता है। फिर आपका ट्रांजेक्शनल होता है, कि भाई ये बंदा ने, कोई बंदा 5 प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई बंदा 50 प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका सेल कैसा हो रहा है, उसका बेसिकली उसका रिव्यूज कैसा आ रहा है, ऑल दोज एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो ऑल दिस डेटाबेसेस, अब हर एक अलग अलग डेटाबेस है, राइट। ऑल दिस डेटा, मैंने तो बहुत छोटा एग्जांपल लिया, बट Amazon बहुत बड़ा है, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये सब चीजें कंबाइन होके बनता है आपका एक डेटा वेयरहाउस। सो डेटा वेयरहाउस डील्स अबाउट कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्लस आपका जब से स्टार्ट हुआ है, जैसे अगर Amazon 2000 से स्टार्ट हुआ है तो आपको वो पूरा डेटा मिलेगा वहां से, जब तक डेटा अवेलेबल है तब तक आपको मिलेगा, बट इट इज जस्ट स्टोर्ड। डेटा वेयरहाउस जैसा हमारा नॉर्मल वेयरहाउस क्या होता है, वहाँ पे चीजें स्टोर्ड होती है, स्टॉक होती है। सेम थिंग डेटा वेयरहाउस में भी डेटा स्टॉक होता है, पड़ा हुआ होता है। आपको कुछ भी चाहिए आप उसमें से एक्सेस करके अपने पास ले लो और उस पर बाद आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, since we'll be working with the data, so how it all started. These are the 6 type of data. Relational database, as the name suggests, multiple within the database there are relationship exist between the table. When I say relationship, it means they are at the same level. Hierarchical is also a type of relational database, but in hierarchical the relation is not at the same level but more of a parent and child node. Matlab, if another data wants to access me, it has to go through the parent first and then to the child. Correct, Umed? Yes. So Umed has commented that basically data warehouse is a collection of databases, right? But data warehouse is at scale. जब एक वो स्केल पे आ जाता है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का होता है, उसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी छोटी कंपनी का डेटा लोगे, भले वो 20 साल का है बट वो छोटा सा है, so I would still call it a database. I'll not call it a data warehouse because of the complexity and the data, I would say the volume of it. ठीक है। The third type of data is graph based database. Again, graph के अंदर भी it works like a network, M into N relationships with the data. The fourth is graph database, to be honest, is used in when there are M to N relationships. For example, अभी आपने एक Amazon का वेब पेज देखा iPhone 11, अब हम 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग उस पर्टिकुलर पेज पे देख रहे हैं, बट वहां से कोई Amazon 11 से Amazon 10 सॉरी iPhone 11 से iPhone 10 पे जाएगा, बोलेगा बहुत महंगा है, मैं iPhone 10 पे जाता हूँ। कोई और बंदा रहेगा, बोलेगा नहीं मुझे iPhone 11 OnePlus 8 से कंपेयर करना है, तो वो उस पे जाएगा। कोई दूसरा बंदा रहेगा, बोलेगा ठीक है iPhone 11 पसंद आ गया, मैं कार्ट पे जाऊंगा, बाय नाउ पे जाऊंगा। कोई और बोलेगा ठीक है ये तो देख लिया लेकिन अभी पैसा नहीं दे रहे पापा, मैं कल देखूंगा, तो अभी मैं स्क्रैच गार्ड तो खरीद लेता हूँ। तो समझ रहे हो? So from the same source you have multiple destinations, and when you go to the another destination, from that also you can go to different destinations. So that imagine as a network, ठीक है, एक से बहुत सारे नेटवर्क्स नोड्स निकल रहे हैं, that becomes a graph based databases. And the fourth is operational databases.
the good example of operational databases would be NSE का database, जहाँ पे real time पे आपका data आता है. तो जहाँ पे भी real time होता है, it becomes operational. जैसे NSE हो गया, आपका net banking का data हो गया, that can be called as operational database, right? The fifth is distributed database. Now distributed database is more like कि आपका अगर data एक जगह पे stored है और अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो क्या होता है, एक ही जगह पे लोड आता है, राइट? बट व्हाट इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द डेटा, जैसे अगर अमेजोन के बहुत सारे ऑफिसेज है इंडिया में. अब इंडिया का जो इंडिया में बहुत सारे ऑफिस, अब जो मुंबई का ऑफिस है वहाँ का HR है, उसको सिर्फ मुंबई के एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए. इसके लिए वो फुकट का क्यों पूरे एम्प्लॉय के डेटाबेस को सर्च मारे. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंगली कि मुंबई का जो पार्ट है जो सिर्फ मुंबई को एक्सेस करना है वो मुंबई में ही रहेगा, सो दैट कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारा लोड एक जगह पे ना है. द वर्क लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? सिमिलरली डेटा वेयरहाउस, अगेन डेटा वेयरहाउस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेसेस. ठीक है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. मूविंग ऑन. अब डेटाबेस पढ़ लिया, बट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सिंपल एकदम, जस्ट ब्रेक डाउन द वर्ड्स. अब डेटाबेस तो है, उसको मैनेज कैसे किया जाए? व्हाट इज मेंट बाय मैनेज? मतलब अगर मुझे कुछ नया बनाना है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर मैनेज. अगर ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे साइज चेंज करना है, अगेन दैट कम्स इनटू मैनेज. अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, कुछ डिलीट करना है, या मेरे को कॉपी करना है, या किसी को कोई नया डेटा दे रहा है उसको इंपोर्ट करना है, किसी को भेजना है तो एक्सपोर्ट करना है, तो हाउ डू आई डू दैट? फॉर दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. ठीक है, बिकॉज डेटाबेस इज जस्ट अ पैसिव एंटिटी, वहाँ पे डेटा सिर्फ स्टोर हो रहा है, बट अगर तुमको मैनेज करना है यू नीड DBMS. सो इन टेक्निकल टर्म्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software package designed to define, manipulate, retrieve and manage data in a database. ठीक है, जो मैंने बताया शुद्ध हिंदी में वही है, महाशय इंग्लिश में कह रहे हैं कि भाई आपका डेटाबेस है, आपको उसको कुछ नया डालना है या उसको निकालना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, उसके लिए यू नीड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लेट अस लुक इट विद अ एग्जांपल. ठीक है, give me a moment, just have a close view at the so अभी तक हमने जो पढ़ा है डेटाबेस, वो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आता है दिस, कि भाई डेटाबेस है, स्टोर तो हो गया. अब क्या? अब स्टोर होता है, स्टोर करने वाले अलग है, यूज करने वाले अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर IRCTC का डेटा लेते हैं तो टिकट निकालते हैं हम लोग, तो हमारा डेटा पूरा स्टोर होता है. PNR नंबर, नंबर ऑफ पीपल, हर एक का एज, जेंडर, कितने लोग डॉक्टर है, कितने लोग डिसेबल्ड है, उसमें से कितने इन्फेंट्स है, तुम्हारा प्रेफरेंस ऑफ सीट, प्रेफरेंस ऑफ फूड, प्रेफरेंस ऑफ अगर आपको वो कंबल वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब डेटा स्टोर होता है. बराबर. सो IRCTC के हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और वो स्टोर होता है समझ लो सेंट्रल बेस में. ठीक है, अब डेटाबेस इज मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म और मोर लाइक एन एनेबलर. जैसे कि कल जाके अगर पेरोल ऑफिसर है, उसको निकालनी है कि भाई गुप्ता जी ने इतने इतने टिकट निकाले हैं अपने काउंटर से, जो फिजिकल काउंटर होता है, तो अभी उनको पगार करना है. फॉर एग्जाम्पल एक टिकट का उनको 10 रुपया मिल रहा है. सो अगेन उसका भी डेटा है कि भाई गुप्ता जी ने कितने टिकट्स निकाले हैं. सो दिस गर्ल, the payroll officer can retrieve that information, right? Now there is customer service advisor, जो हम लोग कॉल करते हैं 139 पे कि भाई where is my, तो बहुत लोग आज भी PNR नंबर इंटरनेट पे चेक नहीं करते हैं. they call the customer service of IRCTC कि भाई हमारा टिकट कहाँ तक पहुंचा, वेटिंग है कि नहीं है, क्या लगता है होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं लोग. बट एनीवे, सो they also need to access. Another example on the same domain is जब भी हम एयरटेल या वोडाफोन को कॉल करते हैं या फिर हमारे बैंक्स को कॉल करते हैं, they can access that information, right? बैंक का डेटा क्रिएट कौन करता है? हम लोग करते हैं by making transactions. ठीक है, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो डेटा स्टोर होता है. बट whenever we call the customer service agents, they are able to access it, right? Similarly, the third aspect is sales manager,
जब भी उनको देखना है कि भाई कितने डेटा हो रहा है, कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेसिकली आई वुड से द टिकट वैल्यू, कि भाई कितना लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट दैट दे आर ट्रांजैक्टिंग, उसकी वजह सेल्स मैनेजर को डिटरमाइन करना है कि भाई अपने स्टॉक का लेवल क्या होगा. इफ पीपल मोर पीपल आर यूजिंग, इट मींस द स्टॉक लेवल इज गोइंग टू गो अप. बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट दिस इज हाउ द फुल डेटाबेस एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कम्स इनटू प्ले. ठीक है, I would repeat in simple terms. So we users create data for IRCTC or for HDFC Bank by doing a lot of transactions, by booking a lot of tickets. वो store होता है central database में, automatically store होता है. But to access that database, I need something called as database management system. ठीक है, this is database management system. अब it can be used by various parties. जिसको भी use करना है वो use कर सकता है. Payroll officer, to customer service agent and to the sales manager. ठीक है guys, any doubt before moving on to the next topic? Raise hands, chat. ऑल राइट, अब हमको पता चल गया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई डेटाबेस, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और उसको यूज करने के लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ विल स्टडी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हमने देखा कि भाई टू एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस आई नीड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. गिव मी अ मोमेंट, मैं लैपटॉप पे चार्जिंग लगा देता हूँ. ऑल राइट, सो रिलेशनल डेटाबेस जैसे मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस. सो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू इट. सो इट इज, so there are fields, there are tables and there are records. Very easy to understand. I think जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, it's very easy to understand what is what. ठीक है, and we use we use SQL for querying and maintaining the database. ठीक है, SQL को हम लोग SQL भी बोल सकते हैं और SQL भी बोल सकते हैं. ठीक है, so both are fine, SQL as well as SQL. So relational database is nothing but, ये important है, a relational database consists of fields. Fields in simple terms is the column. Columns are also called as fields. Records is nothing but your rows, and the combination of columns and rows becomes a table. ठीक है, some of the popular RDBMS systems are MySQL, जो हम देख रहे हैं. MySQL actually free है, and we all want to, the world is moving towards free economy, so we always use open source technology. MS SQL Server again is a good server, but it's costly in the sense it's paid. MS stands for Microsoft SQL Server. ठीक है, IBM आ गया, मतलब again it's paid version. Oracle again it's paid version. PostgreSQL again paid. Microsoft Access again paid. ठीक है, so these are the examples for our in this curriculum we'll be using MySQL. Again just interface change होता है, SQL language वही रहती है. So the same query that you can apply on MySQL, the same query can be applied on Microsoft SQL Server or DB2 as well. ठीक है, so the syntax remains the same because what we are studying is the language, not the tool. Tool तो सिर्फ हम लोग free version इसके लिए use कर रहे हैं because you don't know when you get the job what version you will be using. So these are the examples. So we are using MySQL, Dolphin वाला. Cool. So this is what RDBMS is all about. जैसे कि एक टेबल है जहाँ पे आपका कस्टमर नंबर है, जैसे कि कस्टमर का डेटाबेस है. ठीक है, Amazon का समझ लेते, जब आपने रजिस्टर किया तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें पूछी, आपका नाम फुल नेम विच इज, और आपका एड्रेस.
ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है विच इज योर कस्टमर नंबर. जैसे पीपल हु आर वर्किंग हैव यूनिक एम्प्लॉय आईडी, राइट, क्योंकि नंबर नाम फिर कभी भी रिपीट हो सकता है. जैसे अगर मेरा नाम है अमित कुमार, तो मेरी कंपनी में 4 अमित कुमार है, बट हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? I have a unique identification number which is 101 or 102, similar to that. ठीक है, so the fields are nothing but the columns, the records are nothing but the rows, and the combination of this becomes a table. ठीक है, so simple जो English का definition table है, that fits exactly to the SQL का definition of a table. अब अगर मुझे बताना है कि भाई what is the size of this table, so it's always rows into column. So the number of rows I have is 4. It starts from here, not here. ठीक है, so I have 4 rows, 101, 102, 103, 104 into 3 columns. Customer number, name and street are the 3 columns. So the size of my table is 4 into 3. So always it's RC, rows into columns. ठीक है, थोड़ा सा theoretical भी देख लेते हैं. Tables is nothing but the collection of rows and columns. Records or tuple represents each row. तो record भी बोलते हैं, row भी बोलते हैं और tuple भी बोलते हैं. Different jargons. Field or column names or attribute name are the columns of the table. Again, it can be customer number, name and street can be denoted as fields or column or attribute. And the keys establish relationship between tables and customer number. Okay, this is important. Keys. Now keys are just because this is a relational database. मतलब और भी tables होंगे जिनका इस particular table के साथ relationship हो सकता है. To give you a real life example, ये आपका समझ लो कस्टमर का डेटा हो गया जब आपने रजिस्टर किया. जब आप कुछ खरीदोगे तो वहां पे आपका नाम और स्ट्रीट एड्रेस ज्यादातर के नहीं आएगा, वहां पे आपका सिर्फ कस्टमर नंबर होगा. तो हाउ विल द ट्रांजैक्शनल डेटा लुक लाइक? 101 हैंड सैनिटाइजर, 101 डेटॉल लिक्विड सोप, 101 5 पैकेट ऑफ मास्क, 102 5 पैकेट्स ऑफ कोई और चीज समझ लो, 102 5 पैकेट्स ऑफ ब्रिटानिया लेज और ब्रिटानिया बिस्किट एंड लेज, 103 1 bottle of whiskey, 104 अगेन वो बच्चा है तो वो क्या लेगा, बोलेगा 5 स्टोरी बुक्स और 3 SQL के हैंड बुक्स, something like that. So this is a transactional table and I do not want to repeat the data because अगर मुझे डेटा चाहिए, आपका नाम और एड्रेस चाहिए, I can take it from this data. So it does not make sense to to use redundant data. Now pay attention here. Now what becomes our key here? The customer number becomes our key. कल जाके अगर मैं Amazon पे हूँ और अगर मेरे पास ऐसा डेटा है, एक जगह पे कस्टमर का डेटा है, एक जगह पे ट्रांजैक्शनल डेटा है, और मेरा बॉस मुझे पूछता है एक काम कर, इतना पता लगा दे कि ये कोरोना के पीरियड में कितने लोगों ने कितना सेल हुआ है मेरा हैंड सैनिटाइजर का. ठीक है, तो अगेन और कितने लोगों ने लिया है. ठीक है, नाउ here my question is कितने लोगों ने लिया है. so अगर किसी ने 5 लिया है या किसी ने 10 लिया है या किसी ने 50 लिया है, लोग तो 2 ही हो गए या 3 हो गए. ठीक है, so I'm not interested in the quantity but I'm the number of people. तो यहाँ पे I'll use customer number as the key. या मुझे और टेक्निकल सवाल आता है कल जाके कि भाई कितने लोग ने कहाँ से लिया है. तो as of now I just have transactional data कि भाई ये कस्टमर है 101 जिसने 5 बॉटल लिया है सैनिटाइजर का, एक 103 है जिसने 50 बॉटल सैनिटाइजर का लिया है. अगर मुझे पूछता है कि भाई वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो आई कैन जस्ट यूजिंग द कस्टमर नंबर, मुझे पता है कि कस्टमर नंबर का डेटा किसी और कस्टमर टेबल में है. व्हाट आई डू, आई यूज 101 एज माई की. की इज समथिंग दैट आई कैन यूज एज अ कॉमन आइडेंटिफायर बिटवीन मल्टीपल टेबल्स एंड आई कैन ज्वाइन द 2 टेबल्स. वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रीट में, वहां पे जैसे एक्सेल पे हम लोग VLOOKUP करते हैं, वहीं पे यहाँ पे की होता है. वो जो VLOOKUP का जो फर्स्ट एंटिटी होता है, जो कॉमन होता है इन बोथ द डेटा सेट्स और बोथ द रिकॉर्ड्स, दैट इज नथिंग बट कीज. ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन? बहुत ही बेसिक मतलब था यहाँ पे, इसके लिए आई टुक सम टाइम.
Are we all good with the definition of what is a column, which is also known as a field or an attribute? Are we also clear with what is the row or a record or a tuple? And also what does a key mean? Of course, जैसे हम लोग practical करेंगे हमको अच्छे से समझेगा. But at the moment, are we clear with the idea of what is a record, a field, and a keys? How does a table look like? Any questions, guys? Okay, no questions. ठीक है, अगर समझा है तो please hands up. Not hands up, but please raise your hands. Hands up थोड़ा सा स्कूल वाला हो जाता है ना. Awesome, awesome. सही है. Any thoughts, guys? किसको कुछ ऐड करना है? Please feel free to message me. I'll just unmute you. किसी को कुछ thoughts है कि भाई उसका they want to share their understanding. कोई मतलब I'm sure people who are from this background will have better understanding of it, even better than me. If you would like to share, please feel free to do that. I don't mind being wrong. All right. 1 point. Yes, Vaibhav. Just unmute you. Yes, Vaibhav. Yeah, so you mentioned that the syntax for all the languages that we were talking about, like MySQL, SQL Server, and stuff like that. So from my experience, what I have seen is that they have it is not altogether a different syntax, but the difference in those syntaxes. That is what I've seen. So if you go to W3 school, if you go there to learn your SQL languages, so what they'll do is they'll give you 3 different sections for MySQL, SQL Server, and other languages also with different syntaxes. Yes. That totally makes sense, Vaibhav. But do you agree to the fact that वो 90-95% same होता है? कहीं Yes, हाँ वही बोला मैं कि it is all not altogether different, but हाँ कहीं एक दो जगह पे ऊपर नीचे होता ही रहता है. So anyways, when you अभी जैसे I have worked in SQL Server. So whenever I start coding now in MySQL, so there will be time when I'll जब मैं SQL Server के जैसा syntax लिखूंगा तो काम नहीं करेगा या फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा वो. बराबर. Yes. So guys, in simple words, I 100% agree with Vaibhav कि there is certain slide because वो tool to tool differ होता है. For example, अगर example दो, अगर आप ये select star from मारते हो, so select is a keyword that we use to access the data or call the data or print the data. ठीक है, जब हमको data उठाना होता है ना database से, तब हम लोग select करते हैं. Star is for all the columns. ठीक है, तो जब मैं मारता हूँ select star from customer underscore data, तो MySQL में वो फॉर एग्जाम्पल सेमीकोलन मारने की जरूरत नहीं पड़ती है. कहीं कहीं पे सेमीकोलन मारने की जरूरत पड़ती है लास्ट में, ताकि उसको पता चले कि इट इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट. अदरवाइज कहीं कहीं पे आपको नेक्स्ट लाइन पे भी जाना पड़ता है जब आपकी क्वेरीज बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारे आप कंडीशंस डालते हो. नो नीड टू वरी इफ आई एम टॉकिंग टू टेक्निकल, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर टेबल. ये सिंटैक्स सब जगह पे वैलिड है, ऑल द लैंग्वेजेस. चेंज कहाँ पे होता है, कहीं कहीं पे सेमीकोलन मारना पड़ता है, कहीं कहीं पे नहीं मारना पड़ता है. ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल था, आई नो. कहीं कहीं पे कुछ कुछ कीवर्ड्स अलग हो जाते हैं, कहीं कहीं पे हैविंग के जगह पे कुछ और कीवर्ड हो जाएगा, बट 90 to 95% इट इज द सेम. 5% बिकॉज ऑफ उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है फ्रॉम टूल टू टूल. SQL is SQL आफ्टर ऑल, बट 5% इट चेंजेस फ्रॉम टूल टू टूल. वो टूल लेवल पे चेंज होता है, राइट वैभव? हमको थोड़ा सा एक आदत है मेरे को म्यूट करने की. हर बार मैं कुछ बोलता हूँ उसके अंदर बिकॉज ऑफिस के कॉल्स में ऐसा होता ही है. नहीं आई अंडरस्टैंड टोटली. So what happened is मैंने एक इंटरव्यू देने के लिए गया था मैं, and I knew SQL Server and कुछ HR का कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और उसने मेरे को Oracle के इंटरव्यू में बिठा दिया. and मैंने आंसर सब कुछ किया था लेकिन उन्होंने मेरे को लिया नहीं, क्यों पता नहीं. So तब से मेरे को दिमाग में आ गया कि यार दोनों अलग अलग कुछ होंगे इस लैंग्वेजेस.
So I repeat, SQL is the language, but tool to tool वो थोड़ा सा change हो सकता है. Yeah. ठीक है? Yes. Okay. Thank you Vaibhav, for sharing your perspective, and I would encourage you, जब भी आपको ऐसा कुछ point बताना होगा ना, so please feel forward कि भाई आपको ये point convey करना है, because I think आपको मेरे से भी ज़्यादा experience है. I have been in the industry for 6 years, but you are 8 years in the industry, so you have seen, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं ना कि आपने ज़्यादा दिवाली देखी है मेरे से. ठीक है, तो हम चाहेंगे कि मतलब आप अपना corporate experience share करो. So कहीं पे if, because मेरा experience मेरे लिए valid होगा, but if you also share your experience, that can help majority of the crowd. Yeah. Okay. Thank you Vaibhav. निखिलेश अय्यर, अच्छा बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है. What does that mean? Does they have a question or are they good? Okay. जिनको क्वेश्चन है सिर्फ वो लोग ही हाथ ऊपर कीजिए. अच्छा निखिलेश, यू आर ऑन, आप अनम्यूट पे हो. अच्छा अनम्यूट कर दिया तो हाथ निकाल लिया. यार डरो मत यार, ऐसा बिंदास पूछो. सही है. सो गाइस मोटा मोटा आइडिया आ गया, थोड़ा सा थियोरेटिकल है बट अपन देखते हैं. इन द मीन टाइम सब लोग का डाउनलोड हो चुका है. जिनका हो चुका है वो येस करे, जिनका नहीं हुआ है वो नो कर दे. बट आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी कि वो जो 3 पार्ट हो रहे थे डाउनलोड, सबका हो चुका है. आई एम श्योर निखिलेश का, उम्मीद का, वैभव जी का हो चुका है, साहिल का भी हो चुका है, एरिक का तो पहले से इंस्टॉल भी हो चुका है. सही है. आई थिंक सरफराज का भी डन है. सही है, चलो गुड. तो हमारी थोड़ी स्लाइड्स बची हैं इसकी. जैसे ही होता है विल मूव, बट विल एंश्योर दैट वी कंप्लीट एटलीस्ट द इंस्टॉलेशन पार्ट, सो दैट नेक्स्ट सैटरडे जब हम लोग आ रहे हैं वी आर रेडी विद द फुल प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है. ऑसम. लेट्स मूव ऑन टू एसक्यूएल. अब हमने ये देख लिया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या होता है. बट टू एक्सेस दैट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको उसकी जुबान बोलनी पड़ेगी, विच इज एसक्यूएल. व्हाट इज एसक्यूएल? जो हमने बताया है पहले से, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट इज प्रोनाउंस्ड एज एसक्यूएल और सीक्वेल. both are right, depends upon environment to environment. Both are equally agreed. Initially developed at IBM by Donald Chamberlain and Raymond Boyce. So it's a language that was invented in the early years of 1970s. So आप सोच सकते हो कितने टाइम से है वो, almost 50 years. But it came into market only after it achieved the standards of ANSI and ISO, International Standard Organization, I believe. So these are the standards जिसके बाद people happily onboard them. जैसे कि कोई भी चीज जब तक वो ब्रांड नहीं हो जाती हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते. Just like that, ANSI and ISO are standard. उसके बाद people have started onboarding them for their business purposes. SQL skills are in popular demand in the industry. Yes, SQL has always been there in the market, and still now with the rise of data science it has acquired a new boom. ठीक है. SQL is the standard language for relational database. सही है. is used to create, insert, search, update, delete database records. ये भी हमने देख लिया है. SQL can do other operations including optimizing and maintenance of database. सही है. So by meaning optimizing and maintenance of database, so various times I would just give you an example. Data duplication is a very big problem. So SQL is not only about storing and accessing the data. So उसके अंदर एक मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा काम है कि भाई हाउ डू यू मैनेज, विच मीन्स अगर आपका डेटा अनक्लीन्ड है या आपका डेटा डुप्लीकेटेड है, बराबर, अगर एक ही बंदा बार बार किसी गूगल फॉर्म पे या गूगल सर्वे पे अपना डेटा डाल रहा है, सो आई हैव वेज टू नो कि भाई ये बंदे ने बार डाला है, मतलब इसका डुप्लीकेट एंट्री है. ठीक है. अकाउंट्स में भी बहुत सारे होते हैं कि भाई ये एंट्री डुप्लीकेट आ जाता है, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो जाता है. ठीक है. पीपल हु आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड कैन रिलेट टू इट. बहुत सारे डुप्लीकेशन हो जाता है. सो बाय मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग, SQL is also able to handle that.
Okay, the last point is relational databases like MySQL, Oracle, MySQL. We have already discussed this, that all of these tools, MySQL is a tool, Oracle is a tool, Microsoft SQL Server is a tool, uses the same language, SQL. All right. Moving on, why SQL? Because it's a declarative language and hence it is very easy to understand. एक बार आप कोड देखोगे और एक बार आपको पता चल गया उसको रीड कैसे करना है, इट इज एज गुड एज आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उससे. ठीक है, वही पॉइंट है, रीड एंड रिटन सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, directly access the stored data, hence it is very fast. Of course, yes, it is. So in short, SQL is widely accepted because it is easy to understand and fast. Introduction to data science. Yes, very important. So this is very similar to what is data science with respect to SQL. हम लोग देख रहे हैं कि डेटा कहाँ कहाँ आ रहा है. This is very similar to the first जो हमने देखा था कि भाई data science is the combination of computer science, statistics and domain expertise. जहाँ पे domain expertise is the key I would say the key entry point, because जब भी आपका domain decide होता है उसी के बाद ही आपका problems decide होते हैं. ठीक है. Big data is where the SQL plays a very important role because the data is stored in various databases. So no matter क्या आपका domain है, you always have to work with data. Hence, big data also forms an important part of it, right? Okay, so big SQL is important with respect to that big data circle in data processing, in data analysis, as well as extracting the data using SQL for machine learning purpose. जब भी आपके पास data तो है, but जब आप SQL से उसको access कर पाओगे, उसके बाद आप machine learning apply कर पाओगे. Hence, SQL forms an integral part of data science, and you will come to know here. Let me go to the next slide. So जहाँ पे भी आपका डेटा आता है, बिग डेटा, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल फॉर योर बेटर रेफरेंस, IRCTC के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है, या फिर IRCTC को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड का तो नहीं, इंडिया का ही है, सॉरी फॉर दैट. Amazon के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है. इफ आई वर्क फॉर अ कंपनी ऑफ द इंडियन डिवीजन, अगर मेरा इफ आई एम अ सेल्स मैनेजर, मेरा टेरिटरी सिर्फ इंडिया है, ठीक है, यूएस में क्या बिकता है मेरे को नहीं पता है. फॉर एग्जांपल अगर फिलिप्स की भी बात कर ले, फिलिप्स इज अ वेरी ग्लोबल कंपनी, ठीक है, लेकिन अगर मैं मुंबई ऑफिस में बैठता हूँ, माय टेरिटरी इज ओनली इंडिया और विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ महाराष्ट्र, आई नीड टू फिल्टर दैट डेटा. तो डेटा वेयरहाउस तो एक ही है पूरे फिलिप्स का, बट इट इज मी हु विल नीड टू सिलेक्ट दैट डेटा. कि तो मुझे वो कंडीशन मारना पड़ेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया और स्टेट इज इक्वल्स टू महाराष्ट्र, डिपेंडिंग अपॉन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में है, पूरी जगत का डेटा एनालिसिस करके मुझे क्या ही मिलने वाला है. डज नॉट मेक सेंस, राइट? वो बोलते ना, एक राई के लिए पूरा पहाड़ तो मैं नहीं तोड़ सकता. So it's better कि, so hence that term data processing comes कि ज़्यादातर कंपनी में बहुत सारा डेटा होता है, but not every data is equally interesting to me. So I'll need to select only the data that I am interested in. अगर मुझे सेल्स का डेटा चाहिए तो सेल्स का डेटा चाहिए, अगर मुझे कस्टमर का डेटा चाहिए तो सिर्फ कस्टमर का चाहिए, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा चाहिए कि भाई कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल तो उसके बाद आता है. If my area of interest is manufacturing, I need to be able to select that, right? So big data is all about storing, data processing is all about selecting the data of your interest, and analysis, like I said, there are certain analysis, certain group by or certain count level analysis, percentage आप निकाल सकते हैं using SQL, very basic level analysis. ठीक है? Let me help that with an example. So इतने सारे data sources है. Philips का example लेते हैं.
So इतने सारे सोर्सेज हैं, बराबर। ओरेकल, ERP, समझ लो ये कंपनी का इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे कस्टमर्स का नहीं, बट कंपनी के एम्प्लॉयज खुद का डेटा स्टोर करते हैं, खुद के फाइल स्टोर करते हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस, लाइक आई सेड, समझ लो ये उनका ऑर्डर डेटाबेस है, ठीक है, कि जो भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर आता है या अमेजोन से ऑर्डर आता है वो ऑपरेशनल सिस्टम्स में जाता है, बिकॉज वो रियल टाइम होता है, राइट, और फ्लैट फाइल्स है। सो फिलिप्स इज नॉट ओनली ऑनलाइन बट इट ऑल्सो डील्स विद ऑफलाइन बिजनेस। जैसे कि कोई एक बंदा आता है, एक मैनेजर, सेल्स मैनेजर टाइप, वो किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाएगा, बोलेगा साहब आपको कितना ट्यूबलाइट दूं फिलिप्स का, वो बोलेगा 5 मीडियम दे दो, 10 स्मॉल दे दो, ये इतने वॉट का दे दो, वो उतने वॉट का दे दो, बराबर। वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो ऑफलाइन होता है, पेपर पे होता है, विच देन ट्रांसक्राइब्स इनटू एक्सेल, और फिर वो जहाँ पे स्टोर होता है आपके डेटा वेयरहाउस में। सो आर यू एबल टू गेट कि एक कंपनी है फिलिप्स, एक ही कंपनी, लेकिन वहां से डेटा कहाँ से आ रहा है। कंपनी के एम्प्लॉयज भी डेटा डाल रहे हैं, अमेजोन से भी डेटा आ रहा है, फ्लिपकार्ट से भी डेटा आ रहा है, philips.com जो उसका खुद का वेबसाइट है वहां से डेटा आ रहा है, जो उसका सेल्स मैनेजर है जिसको हम लोग फील्ड वर्कर्स बोलते हैं, राइट, वो लोग भी सूट टाइप पहन के मस्त जाते हैं कि साहब आपका कितना लिखूं, कितना पीस लिखूं, कितने वॉट का लिखूं, जो होता है, राइट। एवरी ऑफलाइन स्टोर, किराना स्टोर में हम लोग देखते हैं वो आते हैं सेल्समैन। सो सेम थिंग हैपन। सो जस्ट इमेजिन डेटा कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, all these sources are here and then it forms a data warehouse. उससे पहले there is something called a staging area, जहाँ पे आपका डेटा प्रिपेयर होता है, I would say डेटा फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर फ्लैट फाइल इट वुड बी कन्वर्टिंग दोज पेपर एंड पेन वाला डेटा टू, और आई वुड से हार्ड डेटा टू सॉफ्ट डेटा, जहाँ पे आपका डेटा डिजिटाइज होता है, ठीक है, डिजिटाइज। पहले के 2 डेटा तो ऑलरेडी आपके डिजिटलाइज्ड ही है, तो उसको डिजिटाइज करके मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका डेटा डिजिटाइज होता है, उसके बाद आपका डेटा डिजिटलाइज बन जाता है, ठीक है। डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फिजिकल डेटा इनटू डिजिटल डेटा, इज डिजिटाइजेशन, ठीक है। जहाँ पे आपका डेटा सब प्रिपेयर होता है, ETL वगैरह लगते हैं, थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है कि आपका डेटा जैसे डुप्लीकेट है तो निकलता है, आपको डेटा प्रॉपर होता है, अगर आपने कुछ गार्बेज डेटा दिया है तो क्लीन होता है, वो क्लीन होने के बाद ही वो स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले वो क्लीन सब होता है, यहाँ पे डेटा मसाजिंग होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा प्रिपरेशन होता है, वो सब यहाँ पे होता है। उसके बाद वो एक बार वेयर हाउस पे आ गया, मतलब नाउ इट इज इन द विसिनिटी ऑफ ऑल द पीपल। व्हाट आई मीन बाय इन द विसिनिटी ऑफ ऑल द पीपल इज बेसिकली एक बार वो डेटा वेयर हाउस में आ गया, हर कोई उसको यूज कर सकता है। जो टेलीकॉलिंग एजेंट है वो भी यूज करेगा, टेलीकॉलिंग एजेंट को कोई मैन्युफैक्चरर कॉल करेगा कि भाई मैंने इतना इतना डेटा, इतना इतना माल बनाया है, मुझे पेमेंट नहीं दिया है, वो कॉलर एजेंट बोलेगा 1 मिनट सर, कृपया मैं आपका लाइन होल्ड पे डालता हूँ, मैं अपना डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। सो दिस डेटाबेस हैज टू बी अ फॉर्म ऑफ ट्रुथ। एक बार वो डेटा वेयरहाउस में आ गया, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, वेरी ऑथेंटिकेटेड एंड इन द बेस्ट फॉर्मेट, इट कैन नॉट बी लेफ्ट अनक्लीन्ड, ठीक है। उसके बाद आपके परचेसिंग के लिए वो डेटा जा सकता है कि ठीक है कि चलो भाई जो डेटा मैंने, जो सेल्स मैनेजर है वो देखिएगा कि अच्छा इस एरिया से इतना इतना सेल्स के ऑर्डर आए हैं, वो ऑपरेशंस को बोलेगा भैया इतना मैन्युफैक्चर कर दो, या फिर वो सेल्स का कोई और मैनेजर रहेगा, वो बोलेगा अच्छा इस यहाँ पे इस एरिया में ऑलरेडी यहाँ सेल्स आ गया है, इतने ऑर्डर्स पेंडिंग है, इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो यू सी हाउ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्क्स, it works mostly on manufacturing, sales and inventory management for example, ठीक है। तो हर एक का बंदे का अपना अपना KRA है, कोई बोलेगा कि भाई कितना खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसका उसके लिए डेटा दो, सेल्स कितना है उसका डेटा दो, कितने लोगों के फुलफिल करने बाकी है सेल्स उसका डेटा दो, इन्वेंट्री कितनी बची है, अगर मुझे किसी को बताना है कि भाई मैं तेरे को 100 बल्ब आज का आज डिलीवर कर देता हूँ, तो उसके लिए मुझे इन्वेंट्री का भी डेटा चाहिए, बराबर, which is also called as the stock keeping unit. And these are the final users, जो मैंने examples दिया वही, they can be used for analysis purpose, for reporting purpose and for data mining purpose. All the 3 are related to data science. Analysis तो पहला होता है reporting, which is very structured, तुमको यही देखना है, मतलब यही देखना है। Analysis is ad hoc, कि भाई ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हर बार अलग अलग होता है। जैसे आज आपको जानना है कि कितने लोगों ने खरीदा है, कल आपको जानना है कि कहाँ से कितने लोगों ने खरीदना है, परसों आपको जानना रहेगा कितना माल बचा है। सो दैट इज एनालिसिस। माइनिंग अगेन, you know, asking a lot of questions and using the same data to answer it. So were you able to arrive at a big picture?
कि भाई हाउ डज द डेटा जनरेट कैसे होता है, विच इज डेटा सोर्सेज, डेटा स्टेज होता है. डेटा स्टेजिंग मीन्स डेटा को क्लीन करना पड़ता है बिफोर इट गोज इनटू दिस. एक बार वो वेयर हाउस में आ गया, इट बिकम्स अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. ठीक है, वहां से वो डेटा फिर यूज में जाता है, जहाँ पे सेल्स मैनेजर रहेंगे या फिर इन्वेंट्री मैनेजर रहेगा, वो वहां से डेटा लेता जाएगा. एनी क्वेश्चंस गाइस? सबको समझा? एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारा काम यहाँ होता है, द फाइनल पार्ट. डेटा वेयर हाउस से ही हम लोग डेटा लेते हैं. एज अ डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं होता है कि यू आर इन्वेंट्री का डेटा साइंटिस्ट, यू आर सेल्स का डेटा साइंटिस्ट और यू आर परचेस का डेटा साइंटिस्ट. दिस आर जस्ट डिफरेंट डेटा सेट्स. अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपका माल आपको कब बेचना है, तो आप क्या लोगे? सेल्स का डेटा लोगे. अगर आपको जानना है कि भाई आपको फोरकास्ट करना है कि भाई आज आपके इसमें इतना पीस है, आपको 4 महीने के पहले के लिए अभी से आपको बताना है कि भाई कितना रॉ मटेरियल लगेगा, आपको कितने पीसेस बनाने हैं, तो यू यूज परचेस का डेटा. बराबर. अगर आपको ये जानना है कि भाई कितने कितने टाइम में वो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड जहाँ पे मुझे अपना रॉ मटेरियल फिर से ऑर्डर करना है, सो दैट इज इन्वेंट्री. डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस प्रॉब्लम, the data scientist wears that hat and extracts or process that kind of data. Guys, any question in this slide? This slide was very important. गला बैठ गया थोड़ा मेरा. Guys, any question? If everybody is okay, moving on to the next slide, which is also the last slide, kindly raise your hand. हेलो, मैं म्यूट पे हूँ क्या? Guys, if you are okay with, if you have understood this slide, kindly raise your hand. If you are not, kindly reply with something. Ki bhai, I have a question, I have a thought, so that I can unmute you and everybody of us can hear your thoughts. Awesome. Thank you guys. Let's move ahead. Okay, I do not have anything on chat, so let's move ahead. The last slide for the first is key takeaways. So we know data is everywhere, hence databases are used to store and manage data. सही है. Database can be relational or non-relational, since we are more interested in relational databases, because as a data scientist most of the times we work on relation data. ठीक है. The basic elements of RDBMS or relational databases are tables, rows, columns and keys. So rows, columns and keys, they all together form a particular table, and a table form a database. Collection of tables form databases. SQL is a structured query language and vital tool for accessing and manipulating data in the entire data science life cycle. Perfect. I think we have stressed enough that SQL is the language for accessing the data. Any queries, guys, before moving on? So the topic number 1, which is introduction to SQL, ends here. We'll be moving to the next, which is installation of MySQL. No questions, guys? Kindly raise your hands if we can move ahead. बोर तो नहीं हो रहा है ना गाइज? अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेंगे अभी, और थोड़ा सा जो भी थियोरेटिकल रहेगा इंस्टॉलेशन का वो अपन बाद में कर देंगे. डू शेयर योर थॉट्स यार. अपन मतलब अपने कौन से 12th की एग्जाम देनी है, और ना अपने को गाई है सिलेबस कंप्लीट करना है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव और दैट्स द ओनली KPI वी हैव. All right, सही है. So I'll just stop sharing my screen here and move ahead with the installation part. So Vaibhav, may I request you to please volunteer again.
कोई ऐसा है जिसका डाउनलोड अभी भी नहीं हुआ है या बीच में फेल हो गया हो? सही है, ठीक है गाइज, आई होप एवरीबडी हैज रीच्ड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। अगर नहीं हुआ है तो हैंड्स रेज कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है, सबका हो ही गया है, सही है, कूल। काइंडली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, रेडी टू कॉन्फ़िगर नेक्स्ट। सही है, इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्टैंड अलोन मायस्क्यूएल सर्वर, यही आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्टेड ही है। डेवलपमेंट सेंटर कुछ चेंज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट ही करना है, कीजिए नेक्स्ट। ओके, दिस इज अ स्टेप जहाँ पे आपको कुछ करना है। नाउ जनरली आप जब मायस्क्यूएल सर्वर और क्लाइंट की बात करते हो, सो आपका जो मायस्क्यूएल सर्वर होता है वो किसी हाई एंड मशीन पे होता है जिसकी रैम 32 GB रैम या 64 GB रैम होती है, राइट? क्योंकि सर्वर का काम क्या होता है, टू सर्विस द क्लाइंट्स, राइट? सो ये एक ऑथेंटिकेशन होता है कि क्लाइंट का काम होता है कि वो सिर्फ डेटा को एक्सेस कर पाए, और सर्वर का काम होता है कि भाई वो क्लाइंट्स को सर्विस कर पाए। बट सर्वर इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू क्लाइंट, ठीक है? सो वी ऑलवेज नीड टू गिव इट अ पासवर्ड। So give your respective password, but just make sure you remember it. ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसको एकदम बहुत ही बड़ा पासवर्ड दे दो, बराबर ना? जस्ट फॉर मी आई हैव ऑलवेज, अगर जिनको पासवर्ड रिमेंबर में प्रॉब्लम है, दे कैन गिव इट रूट। सो रूट इज द नेम ऑफ योर आईडी, बिकॉज जब आप यूज करोगे तो आपको यूजर आईडी में रूट दिखेगा, पासवर्ड भी रूट ही डाल दो, ROOT, so that you remember it. No matter अगर वो वीक भी है चलेगा, because nobody else is। तो अपना कैसा है कि आप ही सर्वर हो और आप ही क्लाइंट हो, तो कोई और दूसरा बंदा आपके ये सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो यू डोंट नीड टू बी दैट सिक्योर, बट कीप अ नोट कि जब आप एक अलग अलग, जब आप उसको रियल लाइफ केस स्टडी में कर रहे हो, जब आप उसको अमेजोन या कोई बड़े कंपनी के लिए कर रहे हो, आपका सर्वर इज नीड्स टू बी वेरी सिक्योर्ड, ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो यही एक स्टेप है जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। आप अपने मनपसंद डाल सकते हो, बराबर? किसी को अपने गर्लफ्रेंड का नाम डालना है या किसी और का डालना है, बिंदास डालो, कोई बात नहीं है। हम लोग रूट डालेंगे, ROOT। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए वैभव जी। सही है, ये भी बाय डिफॉल्ट सही है। MySQL 8 ये एक सर्विस है जो हमारे चलता है बैकग्राउंड में, जो चलेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट जी, तो बस एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो एक एक करके ये सब चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले वाला हो गया तो राइट आ गया, बाकी जिस पे चल रहा है वहां पे एक एरो है। सो गाइज, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है वैभव जी की मशीन पे, आई वुड रिक्वेस्ट आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ रिमेंबर करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जहाँ पे सिर्फ पासवर्ड पूछना है वहाँ पे अपना मनपसंद या अपने मनपसंद व्यक्ति का पासवर्ड डाल देना है, उसका नाम डाल देना है। ठीक है, ओके। जिन जिन लोगों का होता जा रहा है और जो जो पैरेलली चल रहे हैं वैभव जी के साथ, दे कैन रेज देयर हैंड। जय, यू कैन कॉल मी वैभव, जी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट वैभव। उमेद का हो गया है। उमेद सही है, बहुत एकदम प्रोएक्टिव है। उमेद और निखिलेश दोनों एकदम आगे चल रहे हैं, समय की गति थे आगे। चलो सही है, कृपा आपका भी हो गया, ऑल गुड, सही है। नाउ ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता जाएगा। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर हम एक स्क्रीन देखेंगे। गाइस व्हाट आई विल डू ना, इसका एक डॉक्यूमेंट है, जो इंस्टॉलेशन का एक डॉक्यूमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो मैं शेयर नहीं कर पाया, इस वजह से मैं मैनुअली करवा रहा हूँ। मैं गूगल ड्राइव बना रहा हूँ जिसके अंदर ये सब सेव्ड होगा। बेसिकली आपके रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज
all the files. So अगर आप कोई अगर नया मशीन ले रहा है या किसी का मशीन फॉर्मेट हो रहा है या फॉर एनी रीजन यू नीड टू reinstall it, you don't need to वरी. आप सिर्फ ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो और आप एक वर्ड पैड की फाइल भी है जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट टू स्क्रीनशॉट उसको इंस्टॉल कर सकते हो. सो डोंट वरी ऑन दैट. ठीक है, फिनिश पे क्लिक करना है. एक बार हो गया, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. यस, नेक्स्ट. यस, फिनिश. इसको ऑन. तो अभी क्या हम लोग फिनिश करेंगे तो आपने ऑलरेडी चेकबॉक्स को यस करा है कि स्टार्ट MySQL वर्कबेंच आफ्टर सेटअप. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग 3 चीज़ें कर रहे हैं, 3 सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं. एक तो सर्वर, जो सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस करना. एक है क्लाइंट. क्लाइंट मतलब हम लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे प्रोसेसिंग के लिए क्वेरी मार के. ठीक है. और द थर्ड इज ODBC कनेक्टर विच एक्ट्स एज अ कनेक्टर बिटवीन दिस 2 पार्टीज. तो हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है. तो अब ये पूछ रहा है कि SQL वर्कबेंच स्टार्ट करूँ क्या उसके बाद. तो हम लोग यस करके फिनिश पे क्लिक करेंगे. तो एक विंडो आ जाना चाहिए. यस, सही है. देखो 1 मिनट के लिए हम रुक जाएंगे. विल जस्ट आस्क फॉर कंफर्मेशन. इज एवरीबडी रीच्ड एट दिस लेवल? सो साहिल पहुंच गए हैं. निखिलेश आप भी पहुंच गए हो आई गेस. सरफराज, उमेद, अरीब, सही है. आई एम कृपा, व्हाट अबाउट यू? सही है, यहाँ तक पहुंच गए. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे तो हम SQL वर्कबेंच ओपन करेंगे, बिकॉज सर्वर एक बार बन गया वो बन गया. अब हमको उसके अंदर कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे. अब ये आपके जो कनेक्शंस हैं, यहाँ पे आपको एक टुवर्ड्स द बॉटम MySQL कनेक्शंस के नीचे आपको दिख रहा है लोकल इंस्टेंस MySQL 80. उस पर आप क्लिक करेंगे. हाँ, अब आपको ये पूछ रहा है आपका पासवर्ड. तो जिसने भी अपने गर्लफ्रेंड का नाम डाला है वो वही नाम डाल दे, और जिसने भी रूट डाला है वो रूट डाल दे. हाँ, सही है. अब ये आपका टूल आ गया. अब ऐसा दिखना चाहिए पासवर्ड डालने के बाद. दिस शुड ओपन अप. अब दिस इज हाउ इट लुक्स. तो बेसिकली जहाँ पे आपको क्वेरी 1 दिख रहा है, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ, जस्ट मूव योर माउस पॉइंटर देयर. सही है. तो ये क्वेरी 1 है जहाँ पे हम लोग क्वेरीज डालेंगे. क्वेरीज मतलब कोडिंग करेंगे. यहाँ पे बहुत सिंपल कोडिंग है. तो कोडिंग का नाम सुन के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो इतना ईजी है. तो जो लोग अपने यहाँ पे जो फाइनेंस वाले हैं, CA लोग हैं, वो बोलेंगे चलो भाई हम लोग इंजीनियर को भी टक्कर देते हैं, इतना ईजी है. ठीक है. नीचे आपको आउटपुट दिखता है. तो जो भी आप क्वेरी करते हो तो आइदर उसका आउटपुट आएगा या फिर उसका एरर आएगा. अगर वो सही नहीं है तो जो भी आपका उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आपको आउटपुट विंडो में दिखेगा. कैन वी यूज अदर एडिटर टू फॉर द कोडिंग? अरे ये तो अपनी अपनी खुशी की बात है. आप यूज कर सकते हो, बट माई एक्सपीरियंस लाइज विथ MySQL. सो ऑल दिस कोर्स वुड बी फोकस्ड ऑन MySQL के ऊपर. If you can manage to do the same thing on another tool, well and good. Otherwise, I would advise just use MySQL so that we all are on the same level. All right. जैसे आप बहुत सारे अलग tools भी use कर सकते हो, but I am not an expert in that. Okay. So what editor 2 for the coding? You mean Notepad++, Eclipse, NetBeans, वो वाला editor, IDE? तो स्टूडियो की बात कर रहा है, ऐसे जैसे स्टूडियो ऐसे उस टाइप का. Okay. This is a very relative question because I don't have experience with all the editors. So आप कर सकते हो if you're confident in that. There is no issue with me. But just that if you face any error, probably I'll not be able to help you for that particular editor. इस हिसाब से. But you are free to choose that. If you can manage, if you are confident in that, please go ahead. Don't mind.
ठीक है. So guys, this is how the windows look like. एंड हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा इसी के ऊपर फोकस्ड होगा, राइट. सो आई हैड अ डेक फॉर दिस एज वेल, जहाँ पे बेसिकली स्टेप्स ही थे कि भाई हाउ डू यू इंस्टॉल इट. सो आई विल बी स्किपिंग इट बिकॉज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, राइट. यू डोंट नीड टू सी द स्क्रीनशॉट, जब हमने ऑलरेडी लाइव कर दिया, लाइव देख रहे हैं हम लोग कि हाउ डज इट बिगैन. ऑल राइट, थैंक यू आरिफ. Okay, so that was all about today. I'm glad that I was able to finish it and wrap it up on time. Otherwise कभी कभी extra भी चले जाते हैं, but सही है. So guys, we still have 5 minutes left. I just have a small announcement to make. Since today was our first, today was the first session, and it was more towards the introduction part and the installation part. So in case you guys have any referrals, your friends, your classmates, your college mates, or your colleagues who are interested, we are still, we'll still be able to accommodate them in this sessions, because the next session will be directly on Saturday. And I think this is the best opportunity for people who want to get into data science in terms of both, because the market is also high with data science in terms of opportunity, plus because of lockdown हमारे पास समय ही समय है. Even I have too much of time to, for everything. So I think it would be the best time for them as well. So if they are, kindly refer them to Rima. I'm sure everybody is in touch with Rima, who is the chief admission administrator for this. ठीक है. And if guys, if you want to contact me, I'm just sharing my email ID. I'm sure almost सब लोग मेरे साथ LinkedIn पे टच में है, but in case you have any query, I'm sharing my email ID. I'm more responsive on email rather than any other platform, hence I'm sharing my email. So in case after, during the week, if you have any problem or if you have any questions, feel free to connect with me. साहिल का हाथ ऊपर था, does that mean साहिल को कुछ क्वेश्चन है? दया नो साहिल नहीं ओ मैं दया को बुलाने वाला था अभी. नो कोई प्रॉब्लम नहीं. All right guys, anybody has any questions before we wrap it up for the day? I hope you enjoyed today's session. So a quick recap कर दूं तो we talked about data science. डेटा साइंस क्या होता है, वही जो हमने डेमो में देखा था, उसके एप्लीकेशंस, उसका यूज केसेस एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उसका सक्सेस स्टोरीज, स्पेशली द लेजी, कुछ तो था लेजी डॉग या कुछ और बेल्किन में, एंड लेजी बॉय, सॉरी नॉट लेजी डॉग. Also we then moved on to what is data, what is database, what is a table. उसके बाद database, how do you access a database, probably via the most important method is database management system. And would all these decks be shared with us? I need to get in touch. I need to ask this question, Nikhilesh. I'm not sure because I do not have the ownership of this decks. I am more towards, I'm just, more towards the delivery part, to be honest. The decks have been, the content has been designed by Dr. Shamsuddin Ladda, who is an industry expert, ex-IIT Bombay, and has been designing content for a lot of data science programs. So I am more into the delivery part. All right, so Nikhilesh, let me get back to you with that. Okay, sorry, going back, so SQL is the language of database management system. उसके अंदर हमने देखा कि why SQL is important in terms of data science. Where does it fits? ठीक है, जहाँ पे हमने examples देखा कि भाई data comes from different sources. It goes to the data staging, which is the data cleaning phase. Then it moves to the data warehouse. एक बार data warehouse के अंदर आ गया, it becomes a single source of truth for all of us. And after that, we all use it for analysis purpose, for reporting purpose, and for data mining purpose. And that is where the journey of analysis comes. But before that, we need to know
how the data is stored, what are the different formats, and how to access it as per a requirement. जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि भाई महाराष्ट्र का करना है तो सिर्फ महाराष्ट्र का ही डेटा लूंगा, बराबर. अगर मैन्युफैक्चरिंग का लेना है तो मैन्युफैक्चरिंग का ही लूंगा, सेल्स का नहीं लूंगा, इन्वेंट्री का नहीं लूंगा. ठीक है. So that is why SQL is important. And then we looked at how do we install it. I'll soon share the Google Drive link. I'm आपके साथ. So I'll just give her the share drive का link. Just bookmark it so that future के जो भी contents होंगे जैसे कि recording and जो भी contents रहेगा shareable content will be shared there. All right. So that was all from my end. I will just unmute. I'll just remove that option कि भाई लोग अपने आप को unmute कर सकते हैं. So now people can unmute. If you have any thoughts, suggestions, or any questions, feel free to unmute yourself. Krupa, please go ahead. I wanted to ask whether MySQL differs from other database softwares only in terms that it is free, or are there any other limitations in MySQL? Not really. So MySQL is obviously an open source, but that does not mean it is less powerful or very different. अगर किसी ने Mac यूज किया है या Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है तो हम लोग सब लोग माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज कर सकते हैं. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिब्रे ऑफिस और लाइब्रे ऑफिस, जिसके अंदर सेम एक्सेल आता है, सेम पावर पॉइंट आता है. So just to take on that example, MySQL also has the same efficiency. The coding is of the same language, which is SQL. थोड़ा सा syntax change हो जाता है. Like I said, 90 to 95% syntax वही होता है, लेकिन tool specifics कुछ syntax आ जाते हैं, which we'll see, but you don't need to worry on that. ठीक है. Because MySQL भी कर रहे हैं तो you are 95% confident कि अगर आप कल जाके DB2 या Microsoft SQL सर्वर पे यूज कर रहे हो, आपका 95% सिंटैक्स वही रहेगा. ठीक है. कहीं कहीं पे आप F5 दबाते हो रन करने के लिए, कहीं कहीं पे आप F3 दबाते हो, छोटा मोटा चेंजेस होता है, सेमीकोलन डालना पड़ता है, कहीं पे नहीं डालना पड़ता है, all those kind of changes, but be rest assured 95% is the same, so do not worry on that. Okay. All right, Krupa. One more thing, here on the top we can see there is a drop down with limit to 1000 rows, it says. So maximum is I guess 50,000 I saw. So this is the data limitation. Like in Excel we have 10 lakh rows, so here this is 50,000 up to 50,000 rows. Is it something like that? So you're talking about MySQL? Yeah. This Yeah, thing. that. Yeah. Okay. Right. I'm not sure about this option, but let me check on that. But you are right. हो सकता है limit to 10,000 नोट, because MySQL के अंदर भी 3 एडिशन आता है. एक आता है कम्युनिटी एडिशन, एक आता है एंटरप्राइज एडिशन, और एक आता है, एक और एडिशन आता है एंटरप्राइज और डेवलपमेंट आता है शायद से. So we are currently using the community edition, which is for students and developers. तो आप ये जो queries बना रहे हो, you cannot host it on cloud or you cannot share it, right? Because we are still in a very controlled environment. So MySQL is not free in terms of MySQL में भी paid versions हैं, but उसका जो student edition है ना वो free है. So that is why. And this does not limit it. Like we are limited 1000. उसको no limit भी है इसके अंदर, मतलब it can go on आगे. And अच्छा, and this is not about the data, this is about the code. तो ये आपके कोडिंग के है, जैसे आपने फर्स्ट में आपने डाला, because this is the text edit, this is the code editor, this is not the database. तो ये जो आपको लिमिट दिख रहा है ना, ये आपको जो लिमिट दिख रहा है, ये लिमिट आपका इसका है, the number of lines of code or the query. Because जब हम लोग नॉर्मल डेटाबेस पे काम करते हैं तो 100-200 लाइंस में हो जाता है, बट व्हेन यू वर्क ऑन एंटरप्राइज लेवल डेटा, the coding goes from tens of thousands to lakhs at times. कभी टाइम मिला तो मैं आपको अपने कंपनी का एक कोड है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई मतलब 40 लोगों ने मिलकर वो एक सिंगल क्वेरी लिखा है that runs up to thousands of lines of code, and that was not developed in a day, but धीरे धीरे as depending upon the requirement or the change in requirement it was developed. Hence this is the limit.
nothing else. All right, Krupa. Any other Yes, thing? yes. No, no, no. Thank you. All right. आप थोड़ा सा इसको कर सकते हो, फाइल के अंदर क्या है, एडिट के अंदर क्या है, इफ यू हैव टाइम, बट डेफिनेटली आई विल शो यू इन द नेक्स्ट थिंग्स टू कम. आप सर्च कर सकते हो, एक एक्सेल फाइल ले लो डमी वाला, कि आप इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हो. W3 स्कूल तो बहुत सारे हैं, हम लोग करेंगे, बट इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू बी प्रोएक्टिव, फील फ्री टू डू दैट. ठीक है? That goes for all, not for Krupa only. That goes for all. All right. Anybody else has to say anything before we call it a day? Let me give 10 more seconds for people who are still thinking to do or not to do. Bebo, you can close the screen sharing. I think we are good with that. And thank you once again for volunteering. Yeah, okay. It's okay. Okay, guys. Thank you, guys. I think we don't have any further questions. I'll see you again very soon on next Saturday. Again, we'll have a lecture, same time, 11 to 4, 2 days, right? And again, I'd request you, अरीब ने बहुत अच्छी बात कही है, stay safe guys, stay home, and वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे पता चले आपको और सबको. ठीक है? And make the best use of it. Thank you guys and have a great week ahead.